हेलो एवरीवन, आई एम संकल्प और आज हमारे साथ रौनक है एंड ही हैज़ क्रैक्ड सेल्सफोर्स फॉर द इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप. So we will discuss all about the process and all his tips and suggestions. So I hope you like the video. So and if you have not yet subscribed, also subscribe press the subscribe button. और अब अगर किसी को ये वीडियो लंबा लग रहा है या लेंदी लग रहा है तो जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और जो भी टाइम स्टैम्प्स है I'll give them in the description. So now we'll start the video with a brief introduction. So Ronak, can you introduce yourself? Hi everyone, I'm Ronak Jain, full name. So I'm currently pursuing computer science from RV College of Engineering, and I'm in third year, fifth sem. Yeah, so basically my CGPA is pretty good till now, 9.05. I don't know after this what will happen. Okay. And yeah, that's Okay. And currently he has got a 2 month summer internship from Salesforce and we'll be discussing all the process for this. So अब अगर हम कॉलेज लाइफ के बारे में बात करें तो लाइक व्हाट वाज योर कॉलेज लाइफ एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड एंड व्हाट ऑल थिंग्स विल बी सजेस्टिंग द जूनियर्स. So basically, when I joined, as every new freshers, everyone thinks that to be topper of the department is necessary in college. Okay. So I was in the first sem, I was badly focused on only studies to maintain my CGPA as high as possible. Yeah. And sidewise, I was learning C++ because I liked that language. I had studied before in 8th class. So I kept learning that. I learned that from EDX. Okay. And then in second sem, I heard about competitive programming from my seniors. Few of the seniors were doing. There were not many doing in our college, but 2, 3 were doing. So we came across them and they told about something like that. Then we started in second sem. Me and my two friends were doing in group. So starting from second sem February, I did competitive programming until now. Mostly I am doing that only. Okay. 1.5 years. And I am not much focused in projects and all, which I am focusing now. And I also tried that cricket clubs and also to join, but I was not selected. They were only selecting the zonal level or regional level players. Okay. Okay. So now we talk about previous internships or work experiences. So what all can you share in this? I have not interned anywhere, but I only have a short experience of a problem setter in Interview Mocha. It is one of the company, I think it is in Pune, main headquarters for India. It is in Pune. So I only have worked there as a problem setter. I am working now also there only. Okay. And और अब अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो व्हाट ऑल प्रोजेक्ट्स यू हैव प्रीवियसली डन और ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट्स है जो हम शेयर कर सकते हैं जूनियर्स के लिए भी. प्रोजेक्ट मैंने कुछ खास किया नहीं है. मेरा बस छोटा प्रोजेक्ट है दो खाली. एक मतलब वो भी अभी मैंने इंटर्नशिप आने मतलब ड्राइव चालू होने से पहले शुरुआत में किया था. वेब से रिलेटेड है. वो भी वॉक थ्रू प्रोजेक्ट है. कोर्सेरा पे मैंने कोर्स किया था एक, तो उसी में बनाए थे वो, तो साथ ही में मैंने बस ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हिम. और अब अगर हम जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको अगर देखें तो लाइक इट वाज एन ऑन कैंपस सिलेक्शन फॉर हिम. सो अब अगर इसमें लाइक टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस का अगर बात करें तो लाइक इस कंपनी में कितने लोगों का सिलेक्शंस हुआ है. हाँ, तो ये कंपनी इनवाइट की गई थी हमारे कॉलेज से ही. वो हमारे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट वालों ने इनवाइट किया था. तो कंपनी का नाम सेल्सफोर्स है ऑब्वियसली. तो इन्होंने पहले तो कट ऑफ यही रखा था कि 7+ CGPA जो भी है वो बैठ सकते हैं पहला राउंड ऑनलाइन कोडिंग राउंड में. बस उसके बाद CGPA मैटर नहीं किया. पहला ही खाली कट ऑफ था 7 और प्लस. ओके. और 150 शॉर्टलिस्ट हुए थे उस हिसाब से. ओके. और टोटल सिलेक्शंस कितने लोगों का हुआ था इसमें. फाइनल सिलेक्शन 3 लोगों का हुआ, जिसमें 2 लड़के थे, एक लड़की थी. ओके.
सो अब अगर CGPA का इम्पोर्टेंस अगर देखें तो इन जनरल लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ CGPA इन द entire selection process? I think for few company it really matters, and in Salesforce it didn't matter that much, but few were there which had kept that CGPA 9 or plus. Then Okay. there were some companies keeping low CGPA for girls and high CGPA for boys. Okay. So these things happen. So for some companies, if you say it will definitely matter, 9 or above they are asking, and some are fine with 7. I think the lowest mark they give is 7. Below that, I don't think so any company Okay. allows us. So like basically it is that you should have maximum CGPA that is possible for you, Yeah, because yeah. इसमें मैक्सिमम कंपनीज में हम अप्लाई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं. अब Nine. अगर हम कोडिंग राउंड जो होता है, जो फर्स्ट फेज होता है, तो उसका अगर बात करें तो लाइक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर देयर एंड द पैटर्न एंड द टाइमिंग फॉर दैट राउंड एंड द डिफिकल्टी लेवल फॉर द क्वेश्चंस. तो पहला राउंड जो था उसमें 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे देयर, and total time was 90 minutes they had given us. Then I think I will tell all the 3 questions. First one was related to some array plus GCD, basically math problem. They had deliberately kept the constants high so that they can trap the students. But actually, the brute force, very high tie complexity code were also passing. So Okay. some were trapped also. That's why they could not clear this round. Some made out that it is working. N cube and to the power 4 were also passing. So Okay. first question was like that only, brute force, simple. Then second was also related to arrays. I think I will give a link in the description. I will tell him to add. I will Okay. tell Sankar to add. There you can see the questions. And third one was some BFS related, rotten oranges something. Okay. Somebody who have been preparing, they would have heard that Yes, question. yes. Okay. So that was for the first round. और अब Yeah. अगर हम इंटरव्यूज के तरफ मूव करते हैं तो लाइक हाउ मेनी राउंड्स वर देयर एंड व्हाट ऑल वर द टॉपिक्स जो वो लोग फोकस कर रहे थे? हम्म, तो फेस टू फेस इंटरव्यू में, मतलब फेस टू फेस तो क्या, ऑनलाइन ही थे, वर्चुअली हो रहे थे सारे, कोविड का टाइम है। तो 2 राउंड तो उन्होंने टेक्निकल रखे थे और एक एचआर, फाइनल वाला एचआर राउंड था। तो इंटर्नशिप इंटरव्यूज में आई डोंट थिंक सो कि तुमको कोर सब्जेक्ट्स उतना पूछते हैं कोई, मेनली डीएसए पे ही फोकस था इनका इनका सेल्स फोर्स का। तो और कुछ कंपनियां थी जो आई थी, वॉलमार्ट और ये सब, जो सब्जेक्ट्स भी पूछ रही थी। तो थोड़ा सब्जेक्ट जैसे ओएस डीबीएमएस, नेटवर्किंग बहुत कम, ओएस और डीबीएमएस जरूरी था, वो पढ़ना था। इसमें पहला राउंड, मतलब इसमें पहला 2 राउंड में क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन ये पूछे थे, आखिरी राउंड एचआर था। ओके. सो अब अगर लाइक इन दिस कोरोना टाइम जो मोस्टली इंटरव्यूज हो रहा है वर्चुअली हो रहा है, सो व्हाट आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स दैट यू थिंक फॉर वर्चुअल इंटरव्यूज? और वर्चुअल इंटरव्यूज के टाइम किस चीज़ों को फोकस करना चाहिए और किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान तो मेन, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लूज हुआ तो उतना प्रॉब्लम नहीं, अगर तुरंत कनेक्ट हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, एक बार डिस्कनेक्ट हो गया था मैं, लेकिन फिर कनेक्ट हो गया। लेकिन ज्यादा देर तक अगर ड्यूरेशन तक डिस्कनेक्ट रहे तो फिर वो रिजेक्ट कर ही देंगे। ओके. और फिर प्रोज देखा जाए तो मेरे हिसाब से बाकी तो प्रोज ही है, क्योंकि अब आपका कोई उसमें ड्रेसिंग एक्सपीरियंस और जो फेस टू फेस इंटरव्यूज ऑफलाइन होते हैं उनमें मैटर करता है थोड़ा, कि आप एकदम शर्ट और ये सब पे जाओ लड़के लोग। ओके. तो इसमें तो कुछ खास मैटर किया नहीं है, सब आप नॉर्मल जो आप कंफर्टेबल हो वो पहन सकते हो। और बस प्रोज यही है, कॉन्स कुछ खास है नहीं। बस एक है हमको लगा, क्योंकि शायद फेस टू फेस में एक से ज्यादा इंटरव्यूअर्स होते हैं, तो वो थोड़ा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन रहता है और एक ही पे आपको फोकस नहीं करना होता है। यहाँ पर एक ही जन आपका ले रहा होता है इंटरव्यू, तो ये थोड़ा अजीब मेरे को लगता है। ओके. चलो, तो ये जो इंटरव्यू प्रोसेस था उसके बारे में हो गया, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस था. Now, if we move with strategy, so like what was your preparation strategy for like clearing these companies? So as I told that I was doing CP since 1 year around. I have been doing CP.
competitive programming. And all of you, I think, know that DSA is the most important, at least for the first 3-4 rounds. Last 2 or 1 DSA doesn't matter, but DSA is important for clearing the initial rounds. So since I was doing CP, so it was beneficial for me. The first 3 rounds were easy for me because I had already done that kind of questions and all. प्रिपरेशन मेरे हिसाब से सीपी सबको करना चाहिए, खासकर वो इंटरेस्टिंग है इसलिए, और ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ाता ही है और आपको इंटरव्यूज में मदद करेगा। लेकिन अब जिनको नहीं करना है तो उनको डीएसए का अलग से प्रॉब्लम तो सॉल्व करना ही होगा। बहुत सोर्सेज हैं, कम से कम 200 to 300 प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करने ही होंगे आई थिंक। ओके, अब अगर हम प्लेसमेंट्स का बात करें या जो भी ये सिलेक्शन प्रोसेस है, तो उसमें लाइक हाउ टू कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड बिकॉज मेनी टाइम्स वी आर फेसिंग रिजेक्शंस आल्सो। हाँ, तो मेरा मेरा यही था कि पहले मेरे भी, मतलब ये चौथी कंपनी थी जो आई थी, तो पहले 3 में ऑब्वियसली तीनों में मैं ऑनलाइन राउंड में बाहर हो गया था डिस्पाइट आई वाज डूइंग सीपी। तो वो होता है, वो उसमें कुछ इतना ध्यान नहीं देने का, मतलब ऐसा है कि आपको आपके लिए जो कंपनी बनी होगी आपका उसमें सिलेक्शन हो ही जाएगा। ओके, तो आप वही है, अपने प्रैक्टिस पे ध्यान देते रहो, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना ही है। अगर प्रोजेक्ट करना मतलब इंटर्नशिप्स के हिसाब से तो प्रोजेक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन प्लेसमेंट के व्यू से देखें तो प्रोजेक्ट्स का बहुत मतलब मानते हैं उन लोग, तो प्रोजेक्ट्स रखना जरूरी है, 1 या 2 कम से कम। ओके, तो अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, किसी ना किसी कंपनी, अच्छी कंपनी में हो ही जाएगा। ओके। सो अब अगर हम जैसे कोडिंग लैंग्वेज का बात करें तो लाइक व्हाट लैंग्वेज यू चूज, और जो लैंग्वेज सिलेक्शन है वो कितना मैटर करता है किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में? तो मैंने तो C++ चूज किया था, और मेरे हिसाब से C++ काफी अच्छा है क्योंकि उनके HTML जो है वो काफी सही है, और वो सारे कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी, हम एक बस सैमसंग ही सुने हैं जो HTML अलाउड नहीं करती है अपने पहले ही राउंड में, और बाकी कंपनी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनका C++ HTML पे, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत काम आसानी से। नहीं तो किसी किसी में आपको हार्ड कोड करना पड़ेगा वो सारा चीज HTML का, तो वो डिफिकल्ट होगा, तो C++ बेटर है। और जहां तक है कि कोई कंपनी C++ और जावा, ये 2 लैंग्वेज तो हर कंपनी अलाउ करती है करने, यूज करने को। पाइथन 1-2 कंपनी है शायद जो यूज नहीं करने देती अभी, जैसा मैंने सुना है, या तो C++ जावा मोस्टली आगे सपोर्ट। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट पीयर कोडिंग या जो ग्रुप स्टडीज होता है, तो लाइक हाउ यू यूज दिस और इसका क्या रोल होता है सिलेक्शंस में? मेरे लिए तो ये बहुत मैटर किया है, क्योंकि सीपी तो ऑब्वियसली हम दोस्त लोग के साथ ही करते थे, तो अगर ऐसा है कि इंडिविजुअली करोगे तो मोटिवेटेड नहीं रहोगे सीपी में, कभी गिरेगा रेटिंग्स और ये सब होते हैं अलग अलग साइट्स पर, तो वो डिमोटिवेट करेगा। लेकिन दोस्तों को उनको देखोगे करते हुए तो ऑब्वियसली वो इनकरेज करता है कि हम भी करें, इम्प्रूव करें, तो वो अच्छा है। और अगर सब्जेक्ट्स के व्यू से देखो तो इंटर्न अभी ही मैंने, जब इंटर्नशिप का ड्राइव चालू होने वाला था उससे 1 महीना ही पहले 3 सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए थे, वो मेरे दोस्तों के साथ ही मिलके, मतलब 3 सब्जेक्ट्स है तो तीनों हम लोगों ने एक एक ले लिया था कि एक दिन ये पढ़ाएगा, एक दिन ये पढ़ाएगा, ओके, तो इस हिसाब से हम लोग का सब्जेक्ट्स भी निकल गया, तो वो बहुत बेनिफिशियल है ईयर कोडिंग और नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए। ओके। अब लाइक इफ वी टॉक अबाउट क्लब्स एंड चैप्टर्स, सो लाइक व्हाट आर सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स फॉर दिस, और ये लाइक हेल्पफुल हो सकता है किसी के लिए या नहीं हो सकता है कभी, या इसको लाइक इसको कैसे लाइक जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए? पहला पॉइंट तो यही है कि क्लब जो ज्वाइन कर रहे हो वो कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं करना है जो तुमको लगता है कि हमको यही करना है एग्जैक्टली आगे 2-3 साल जो भी है, तो वैसे ही क्लब ज्वाइन करो। अगर कॉलेज में कोडिंग क्लब्स है ये सब, अगर कोडिंग में ही करना है तो ऑब्वियसली वही सब क्लब ज्वाइन करना है। तो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो क्लब्स थे वो ज्यादा प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेड थे, तो वो जितने भी काम होते थे उसमें कोई कंपनी के प्रोजेक्ट आते थे या वो सभी मतलब लोग को वैसे ही सेलेक्ट करते थे, तो मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं रहा क्योंकि मैं सीपी में था। तो प्रोजेक्ट्स अगर आपको अच्छे करने हैं तो आप क्लब ज्वाइन करो, सीपी के कोई कोई कॉलेजेस में है सीपी जहां पर चलता है तो अच्छा बात है, लेकिन क्लब का सिलेक्शन वैसे ही होना चाहिए जो चीज चीज तुमको करना है, अगर वो क्लब वही चीज कर रहा है तो बेटर है चूज करना, नहीं तो छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है क्लब्स में रहना।
ओके। हाँ, सो अब अगर हम कॉलेज लाइफ का बात करें तो लाइक व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू इन कॉलेज टू बी मोर प्रोडक्टिव, और जिससे जो प्लेसमेंट्स या सिलेक्शंस हो रहा है या इंटर्नशिप सिलेक्शंस हो रहा है उसमें भी थोड़ा हेल्प मिले। तो मेरे मेरे हिसाब से सबसे टॉप प्रायोरिटी, अगर कोई तुमको सॉफ्टवेयर कंपनी में ही जाना है तो ये मस्ट है, डीएसए वाला पार्ट तुम्हारा उसमें स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। और उसके लिए सीपी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो तुमको अलग से प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन सीपी अगर कर लोगे तो उसमें मजा भी आता है ऑब्वियसली, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और तुम्हारे जो भी राउंड है वो मैक्सिमम क्लियर हो जाते हैं। मेन बात है कि अगर ये तुम एक महीना पहले चालू करोगे ये सब डीएसए, तो प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाओगे तो उसको इतना अच्छा से। और बाकी चीज जैसे सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, तो सब्जेक्ट तुम 1 मंथ में आसानी से कवर कर सकते हो, बहुत सारे सोर्सेज है यूट्यूब पर भी और कहीं से भी तुम पढ़ के। लेकिन डीएसए ये सब तुमको थोड़ा लंबा प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम 6 मंथ्स का तो चाहिए ही डीएसए में थोड़ा अच्छा करने के लिए। तो जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। और जहां तक प्रोजेक्ट्स का बात है, तो प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर का जो प्लेसमेंट ड्राइव सब होता है वो सब में मतलब प्रोजेक्ट काफी देखते हैं कंपनी वाले, कि कम से कम एक प्रोजेक्ट तो किया हो जो अच्छा हो, खुद से किया हो। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कॉपी करते हैं, कभी कभी नहीं पकड़ाते हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी वाले लोग पहचान सकते हैं। तो कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब अगर प्रोजेक्ट करना है तो अपने से करो, एक ही करो चाहे। ओके। सो अब अगर लाइक रेज्यूमे प्रोजेक्ट्स वर्क एक्सपीरियंस का बात करें तो लाइक इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रेज्यूमे दो ही चीज है, मतलब एक्चुअल में तुमको किसी एक चीज पे फोकस करना होगा। बहुत लोग मतलब हम देखे हैं कि अगर दोनों चीज में कूदते हैं, जैसे अगर हम सीपी और इसका भी बात करें प्रोजेक्ट का, अगर दोनों चीज में रहोगे तो 90% का कुछ नहीं कर पाओगे। किसी एक चीज को परफेक्ट करने का, परफेक्ट तो एकदम 100% परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज में काफी अच्छा करने का कोशिश करो, क्योंकि एक चीज काफी वेटेज बढ़ा देगा। अगर तुम प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो 2-3 प्रोजेक्ट जिस भी चीज में कर रहे हो, वेब ऐप डेवलपमेंट, किसी भी मशीन लर्निंग ये सब पे, तो एक चीज पे करो और 2-3 अच्छा प्रोजेक्ट करो, एकदम स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दो डाले। और अगर सीपी कर रहे हो तो कंपटीशन जितना पार्ट लोगे, बहुत सारे होते हैं इंडिया में, तो काफी कंपटीशन होते हैं, कॉलेजेस के साइट्स करवाते हैं। फिर एक मेजर कॉन्टेस्ट जो इंटरनेशनल है वो एसीएम आईसीपीसी, जो बहुत लोग करते हैं, तो वो सब का टैक्स बहुत मायने रखता है अगर सीपी कर रहे हो तो उनसे भरो, या फिर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो प्रोजेक्ट में 2-3 प्रोजेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है एकदम। ओके। सो लाइक आफ्टर यू गॉट योर ऑफर्स व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव बीन डूइंग, लाइक पढ़ रहे हैं या लाइक नॉर्मल कोर्स वर्क कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं? तो जहां तक मैंने बताया कि सीपी में करता ही हो, तो मेरे प्रोजेक्ट्स थोड़े वीक है ऑब्वियसली, दिख ही रहा होगा इतना देर से। और तो उसके बाद जैसे मतलब उसके मतलब प्लेसमेंट्स होने के बाद तो मैंने प्रोजेक्ट पे थोड़ा फोकस करना चालू किया है। तो मेरा इंटरेस्ट मेनली क्रिप्टोग्राफी और वेब डेवलपमेंट का ही है, तो उस दोनों चीज से रिलेटेड मैंने पढ़ना चालू किया। अब देखता हूँ अच्छा कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा ही। ओके। सो एनी फाइनल टिप्स फॉर जूनियर्स जो अभी ये वीडियोस देख रहे हैं या फिर जो फर्स्ट सेकेंड ईयर्स में है अभी? हाँ, टिप्स ये है कि अगर तुम जो चीज डिसाइड कर रहे हो उस पे फोकस कर रहे हो, मतलब एक बार अच्छा से पता कर लो कि क्या बेस्ट करना है हम लोग को। अगर प्लेसमेंट व्यू से है तो पता कर लो क्या बेस्ट रहेगा, वो सीनियर से आसानी से पता लग जाएगा। मोस्टली लोग यही बोलेंगे डीएसए कर लो, सीपी कर लो, हो जाएगा। लेकिन तुमको जो अच्छा लगता है वो लो और उस पे लगे रहो। फिर उसके बाद बहुत डिस्ट्रेक्शन आएंगे, कोई बोलेगा मशीन लर्निंग कर लो, या अभी का यही क्रेज है, ये सब है। तो ओके। लेकिन तुमको जो है अच्छा लग रहा है वही करो, और उसमें बेस्ट होने का कोशिश करो। कोई डिस्ट्रैक्शन आए, बोलने दो लोगों को। ओके। सो दैट वाज एन ऑनेस्ट टॉक विथ हिम, और बहुत सारा जो भी आंसर इसने किया बहुत ही मतलब सच सच बात बोला, ठीक है। तो जो भी ये वीडियो देख चुका है यहाँ तक तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर वगैरह भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।